अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लेंस लिया क्या आता है एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कंप्लीट डिटेल के साथ। तो अगर आप लोगों को कोई भी बात समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ में आ सकता है। मेनली ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इधर देखें, वो कह रहा है कि अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज ड्राइव्ड एज। इधर वो बता रहा है हमें फ्रेडे लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन जो हमने फर्स्ट पहले ही ड्राइव कर चुके हैं। वो है जी मेल्सन इज इक्वल टू माइनस एन डेल नीटा ओवर डेल टी। तो इधर देखें, जो ब्लू लाइन में अंडरलाइन है, मेन चीज़ें देखेंगे। To determine direction, we use a method based on the discovery made the Russian physicist Lenz in 1834. He found that the polarity of an induced EMF always leads to an introduced current that pushes through the magnetic field. Induced current, the change introduced in EMF, the role of known as Lenz law. लेंस लॉ कहलाता है ये रोल, और इसकी जो मैथमेटिकल जो मेन डेफिनेशन है वो इधर आप लोग देख सकते हैं। The direction of induced current is always so as the oppose the change which causes the current. The direction of induced current is always so as the oppose the change which causes the current. नेक्स्ट पेज में हम लोग देख लेते हैं जी, दी लेंस लॉ रेफर्स the to induced current and not introduced EMF, which means that we can apply it directly to the closed conducting loops or coils. ये आप लोग देख सकते हैं जो इसने अभी हमें बताया है। Let's apply Lenz law on the coil in which current is introduced by the movement of bar magnet. We know that a current carrying coil produces a magnetic field similar to that a bar magnet. One face of the coil acts at the north pole while the other one is the south pole. ये आप लोग देख भी सकते हैं, वो जिस तरह बता रहा है उसी तरह उसने डायग्राम में भी बनाया हुआ है। तो इफ़ द कोयल अपोज the motion of the bar magnet, the face of the coil towards the magnet must become a north pole. The two north pole will then repel each other. The right hand rule applied to the coil suggests that the introduced current must be anti-clockwise as seen from the sidebar of मैग्नेट। तो इधर इसने ये बताया है कि अगर हम एक साउथ पोल लें, एक नॉर्थ पोल मैग्नेट लें, तो उसको वोल्टेज पास करवाएं तो वोल्टेज इस तरह से पास होंगी, इस तरह से जिस तरह से बताई हैं। और जब उसको हम एक एंटी करंट पास करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में वो मूव करेंगी। नेक्स्ट देखें वो क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, द पुश ऑफ द मैग्नेट इज द चेंज दैट प्रोड्यूसेस द इंड्यूस्ड करंट एंड द करंट एक्ट्स द अपोज टू द पुश. On the other hand, if we pull the magnet away from the coil, the induced current will oppose the pull by creating a south pole on the face of coil towards the bar magnet. The Lenz law is also a statement of law of conservation energy that can be conveniently applied to the circuit involving induced currents. नेक्स्ट हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, और जो इसका लास्ट पार्ट रह गया है दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इधर देखें ये क्या कह रहा है। द करंट कैरिंग रॉड इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स FM हैविंग द मैग्नेटिक FM इज इक्वल टू ILB sin 90 degree by read hand rule directions. An external dragging force equal to the FM in the magnitude opposite in the direction must be applied to the keep rod with constant velocity. The dragging force provides the energy for the introduced current to flow. The energy is source of induced current, thus electromagnetic introduction exactly according to the law of conservation of energy. The Lenz law forbids the introduced current clockwise in this case because the forces FM would be 15.10 में वो कह रहा है कि आप लोग देख सकते हैं कि जब इसने इन पेपर रखे हैं सेंटर में और गैल्वेनोमीटर अटैच किया है तो फोर्सेस इस तरफ मूव कर रही है। तो लास्ट लाइन हम पढ़ लेते हैं। दिस इज द टर्न इंट्रोड्यूस्ड अ स्ट्रॉन्ग करंट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट इंक्रीजेज मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीजेज रेदर दैन दिस द मोशन ऑफ द वेव एनर्जी वी ऑब्टेन starting with the minutes quantity
apparently from where consistently a process becomes self parameter which against the law of conservation of energy। तो दोस्तों यही था, एक को ये मूव करवा रहा है, एक को ये मूव नहीं करवा रहा है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट यही था हमारा टॉपिक लेंज लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।